point, each lattice point is regarded as basically an atom tagged in the crystal lattice. So this is called as two-dimensional array of lattice points. This array of points may be divided into many different sets of rows. You see, like you can see clearly, this is called as two-dimensional array of lattice points, and I can divide it into different sets of rows. You can see clearly, ये है one row, second row, third row. All the three rows are parallel to each other. This is called as one set of parallel rows. Similarly, this is one row, second row, third row. In the same way, you draw a line here, fourth row, fifth row, so on. So ultimately, these are called as another set of parallel rows. You can draw like vertical also. One, second row, as a third row. This is a fourth row, fifth row, sixth row. So number of sets of rows can be formed. Although this is only two-dimensional array of lattice point, but this array of lattice points may be divided into many different sets of rows. और हर set की characteristic क्या है? If for each set there is a characteristic perpendicular distance d between pairs of adjacent rows. For example, ये first set of parallel rows. And you can see clearly इसकी characteristic क्या है? You can take any two adjacent rows. Any two adjacent rows जो हैं, they are characterized by a perpendicular distance d. Like this is d1. This is the distance between first and second row. Then you take distance between second and third row, again d1. Third and fourth row, again d1. Fourth and fifth row, again d1. I mean to say this is one set of parallel rows. You see another set. One. This is a one row, second row, third row. You can draw fourth row, fifth row, so on. Again, this is another set. It is also characterized by a characteristic distance d, perpendicular distance d2. This is d2 between this and this row, this and this row d2, this and this row d2. I mean to say, a two-dimensional array of lattice points, it can be divided into different sets of rows, and each set of rows, for each set of row, there is a characteristic perpendicular distance d between pairs of adjacent rows. Like first set of row is characterized by distance d, second set of rows characterized by distance d2, another set of rows is there that is characterized by distance, perpendicular distance d3, and so on. तो ये था two-dimensional array of lattice points. In three dimensions, because solids are basically made up of particles which are closely packed in three dimensions. ये तो particle की close packing है two dimension में. But when you take actual solid, that doesn't contain arrangement of particle in two dimensions. That is ultimately contain arrangement of particle in three dimensions. See, for example, this is called as, this is one set of rows, first row, second row, and third row. Now you see, these rows ultimately are present in two dimensions. I want to make three-dimensional picture. How it is made? Like this is, जैसे दीवार बनाते हैं ना ब्रिक्स की, तो ये आ गई फर्स्ट रो ब्रिक्स की, इसके ऊपर सेकंड रो लगाते हैं, उसके ऊपर ब्रिक्स की थर्ड रो लगाते हैं, उसके ऊपर ब्रिक्स की फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सो ऑन. तो क्या बन जाता है? जब एक रो हम ब्रिक्स की दीवार बनाते हैं ना, तो एक रो हम लेते हैं पहले ब्रिक्स की, उसके ऊपर सेकंड रो प्लेस करते हैं, थर्ड रो, फोर्थ रो, पूरी दीवार बन जाती है. वो दीवार क्या चीज है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स in three dimension, because you are ultimately increasing x-axis also, y also, और height ही बढ़ रही है. So ultimately able to say कि when you talk of let us talk of this row, इसमें तीन particles हैं, तो ये होगी फर्स्ट रो में. इसके ऊपर जब हम सेकंड रो के पार्टिकल रखेंगे, फिर थर्ड रो के रखेंगे, फोर्थ पे रखेंगे, अल्टीमेटली एक लेयर बन जाएगी. यहाँ पर इस रो के ऊपर एक लेयर एटम की बन जाएगी. ऐसे ही ये फर्स्ट रो है,
इसके ऊपर हम एक और रो रखेंगे, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सो ऑन। तो इस रो के ऊपर भी बन जाएगी एक यू कैन से प्लेन बन जाएगा, इसके ऊपर प्लेन और लेयर इज फॉर्म्ड। सिमिलरली इसके ऊपर ये फर्स्ट रो में 3 पार्टिकल ड्रा किए हैं, इसकी इस रो के ऊपर, इसके ऊपर एक और रो आएगी, थर्ड रो, सो ऑन। आई मीन टू से ये 3 डायमेंशन में क्या होता है, यही जो रोज हैं ये प्लेन बन जाते हैं। यू फॉलो माई पॉइंट? यू फॉलो माई पॉइंट कि व्हेन, जब आप रो के ऊपर रो रखते हैं तो दीज रो बिकम प्लेन्स। लाइक मैंने एग्जांपल दिया कि एक रो लगाएंगे ब्रिक्स की, तो जब रो के ऊपर रो लगाते हैं तो प्लेन बन जाता है। तो सेम वे कि इस रो के ऊपर एक प्लेन बन जाएगा एटम का, इस रो के ऊपर, इस रो के ऊपर, एंड सो ऑन। एंड ऑल दीज प्लेन्स जो होंगे उनमें डिस्टेंस कितना होगा, d2। इन द सेम वे अगर आप ये सेट ऑफ प्लेन, ये सेट ऑफ रोज लेते हैं तो ये होगी फर्स्ट रो, इसके ऊपर लगाएंगे सेकंड रो, इसके ऊपर थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ये प्लेन बन जाएगा। ऐसे इसके ऊपर लगाएंगे प्लेन बनेगा, इसके ऊपर प्लेन बनेगा, ऐसे अनदर पैरेलल रो लेंगे प्लेन बनेगा। तो ऑल दीज प्लेन्स, पहले मैं बता रहा था कि रोज जो हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस d1 है, बट जब ये प्लेन बन जाएंगे तो सेम डिस्टेंस तो d1 ही रहेगा ना इनके बीच में, चाहे वो रो की फॉर्म में रहे और प्लेन की फॉर्म में, डिस्टेंस मीन्स d1। ऐसे ही ये रो की फॉर्म में रहे या प्लेन की फॉर्म में, डिस्टेंस मीन्स d2। आई विल टू से इन 3 डायमेंशन में दीज रो बिकम प्लेन्स एंड एडजेसेंट प्लेन्स जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय इंटरप्लेनर डिस्टेंस d। d मीन्स इस रो में d1, इसमें d2 एंड सो ऑन। तो दस एनी क्लोज पैक स्ट्रक्चर, अब कोई क्लोज पैक स्ट्रक्चर ही सच एज मेटल स्ट्रक्चर, आयनिक स्ट्रक्चर्स लाइक NaCl, ये आयनिक स्ट्रक्चर है, CaF2 आयनिक स्ट्रक्चर है, कोई मेटल ले लें, कॉपर मेटल, आयरन मेटल, वो मेटल स्ट्रक्चर है। तो आई बी टू से इन एनी क्लोज पैक स्ट्रक्चर में is may be regarded as built up of layers or planes of atom stacked to form 3-dimensional structure। ये मैंने एक प्लेन ड्रा किया था, जब रो के ऊपर रो ड्रा करेंगे we get 3-dimensional picture। In short form, a closed packed structure is ultimately built up of, is may be regarded as built up of layers or planes of atoms, and adjacent planes in a set are characterized by a fixed distance d। like पहले मैं बता रहा था ये रोज हैं, ये सेट ऑफ रोज है। आई एम टॉकिंग ऑफ नाउ इट इज सेट ऑफ प्लेन्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टेंस d1। ये पहले रो कह रहा था मैं, जब एक ही यहाँ पर 2 डायमेंशनल अरे लिया तो ये सारे रोज हैं, बट जब इसी को बनाएंगे आप 3 डायमेंशनल, मीन 3 डायमेंशनल में रो के ऊपर रो प्लेस करेंगे तो अल्टीमेटली यही रोज प्लेन बन जाएंगे। तो अगर रो में डिस्टेंस d1 था और यहाँ d2 है, जो प्लेन बनेंगे डिस्टेंस रहेगा d1 इस सेट में, और इस सेट ऑफ प्लेन में रहेगा डिस्टेंस d2। तो नाउ वी कैन से कि कोई क्लोज पैक स्ट्रक्चर हो दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेन्स। लाइक हियर one set of planes characterized by a distance d1, another set of planes characterized by distance d2, and similarly we can make more sets of planes and they are characterized by distance d3, d4, d5 and so on. So it is clear now every closed packed structure in a solid is ultimately made up of a number of set of parallel planes. And lattice planes, now it means plane is very important in solids। अब planes को कैसे represent करना है, तो lattice planes जो हैं they are leveled, उनको कैसे leveling करते हैं, by assigning 3 numbers। हम plane को 3 number assign करते हैं, उनको बोलते हैं Miller indices HKL। Each plane in a closed packed structure is leveled by assigning 3 numbers called Miller indices। The derivation of Miller indices is illustrated in the figure now। Now this is I have taken a unit cell or it is a cube, और इस यूनिट सेल का या क्यूब का यहां से लेके यहां तक ये है एज ऑफ यूनिट सेल along x एक्सिस, यहां से यहां तक।
यहां से लेकर यहां तक एज यूनिट सेल का लॉन्ग वाई एक्सिस है, यहां से यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक एज है यूनिट सेल का अलॉन्ग जेड एक्सिस। सो ये जो यूनिट सेल्स के जो एक्सिस हैं, एजेस हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, वाई एक्सिस यहां से लेके यहां तक बोलते हैं बी, और जो यूनिट सेल एच अलॉन्ग जेड एक्सिस है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो ए बी सी आर कॉल्ड एज एजेस ऑफ यूनिट सेल, एंड समटाइम्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज ए बी सी आर आल्सो कॉल्ड एज यूनिट इंटरसेप्ट्स ऑफ द यूनिट सेल। ए बी सी आर कॉल्ड एज यूनिट इंटरसेप्ट्स। तो ए जो है यूनिट इंटरसेप्ट, ये है अलॉन्ग एक्स एक्सिस यहां से लेके यहां तक, और बी जो इंटरसेप्ट है यूनिट सेल का वो यहां से यहां तक है, सी यहां से यहां तक है। तो एक प्लेन शो किया है, ये प्लेन, एंड यू कैन सी क्लियरली ये जो एज था अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसको मैंने डिवाइड किया दो पार्ट में, ये होगा a/2, ये होगा a/2, और यहां से लेके उसको मैंने b एक्सिस को डिवाइड नहीं किया, ये पूरा b रहा। और जब आप लेते हैं थर्ड एज अलॉन्ग z एक्सिस, तो यहां से यहां तक था, इसको डिवाइड तीन पार्ट में किया, यहां एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, एंड एवरी पार्ट इज इक्वल टू c/3। ये होगा a/2, ये पूरा होगा यहां से b, और यहां होगा c/3। तो एक प्लेन शो किया है यहां पर, दिस इज, ये जो शेड किया है दिस इज ए प्लेन, एंड प्लेन इन क्वेश्चन कट्स x एक्सिस एट a/2, y एक्सिस एट b, z एक्सिस एट c/3। तो जो कोएफिशिएंट हैं आप, because a b and c are called as unit intercepts, the coefficients of unit intercepts are, ये है यूनिट इंटरसेप्ट a, क्वेश्चन 1/2 है, ये यूनिट इंटरसेप्ट b है, इसका क्वेश्चन 1 है, और ये क्वेश्चन यूनिट इंटरसेप्ट c है, क्वेश्चन 1/3 है। So I will say coefficient of unit intercepts are 1/2, 1, 1/3, and they are called as Weiss indices. Taking reciprocals of these fractions, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका करेंगे, वो देगा हमको 2, 1, 3, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2 का 2, 1 का 1, 1/3 का 3, तो 2, 1/2, 1, 3 they are called as three numbers HKL, called Miller indices। तो किसी प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस कैसे साइन करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि जो प्लेन है एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, लाइक a/2, फिर कहेंगे देखते हैं y एक्सिस पर वो प्लेन कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, इट इज b, और z एक्सिस बना रहा है c/2, एंड देन वी टेक कोएफिशिएंट्स ऑफ यूनिट इंटरसेप्ट्स, हाफ 1, 1/3, इनको बोलते हैं Weiss indices, और वी टेक रेसिप्रोकल्स ऑफ these intercepts, that is 2, 1, 3. This is called as Miller indices 2, 1, 3. So this plane is leveled as 2, 1, 3. तो 2, 1, 3 अगर प्लेन है, इसका मीनिंग क्या है? 2, 1, 3 अगर हम कहते हैं ये प्लेन 2, 1, 3 है, इसका मीनिंग है कि दिस प्लेन इज कटिंग x एक्सिस एट a/2, बिकॉज बेसिकली मिलर इंडिसेस क्या है, ये रेसिप्रोकल है Weiss indices के। हमने ये Weiss indices था ना 1/2, 1, 1/3, इनका रेसिप्रोकल किया तो वी गेट मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस Weiss indices के रेसिप्रोकल है, और वी कैन से मिलर इंडिसेस रेसिप्रोकल किसके रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन अलोंग 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, 1/2, 1, 1/3, ये इंटरसेप्ट्स थे प्लेन के अलोंग 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, इनका जो रेसिप्रोकल आएगा वो होगा मिलर इंडिसेस। तो अगर इस प्लेन को हमने लेवल किया 2, 1, 3, उसका मीनिंग है कि दिस प्लेन इज कटिंग x एक्सिस एट 1/2 or a/2, y axis at 1 or b, and z axis at 1/c/3 or 1/3. So these three indices are called as Miller indices of plane, and all other planes that are parallel to it, देखो सिंगल प्लेन नहीं होता, मैंने पीछे बताया था सेट ऑफ पैरेलल प्लेन होता है, and all the planes that are parallel to it are separated from adjacent plane by same distance d, like you see। अब यहां पर शो किया था, यहां प्लेन बनेगा, ये प्लेन बनेगा, ये प्लेन बनेगा,
अगर ये प्लेन हमारा आता है लाइक अभी जो बताया हमने 213, तो ये भी 213 होगा, ये भी 213 होगा। अगर ये आता है फॉर एग्जांपल 100, तो ये 100, आई मीन टू से अगर एक प्लेन 100 है, ऑल द प्लेन which are parallel to it also regarded as 100 planes. अगर ये प्लेन 213 है, तो all the plane which are parallel to it also called as 213 planes. So ultimately I mean to say यहाँ लिखा हुआ है these three integers Miller indices हैं and all other planes जो हैं that are parallel to it, जो parallel होंगे 213 के, they are also categorized as 213 planes. But उन distance जो उनका होगा वो फिक्स रहता है, because मैंने स्टार्ट में बताया you set of parallel planes, one set of parallel planes, they are characterized by a fixed distance d. Another example you can see in this figure. ये प्लेन हमने एक शेड किया है और this plane is cutting. Now you see this is rectangular plane. अगर इसको आप देखें तो ये जो प्लेन का ये दो पैरेलल एजेस हैं, ये दो पैरेलल एजेस हैं. So the plane cuts x axis, y axis, z axis at, you can see clearly, ये जो प्लेन है ये x axis को कट कर रहा है 1a पर, 1a मीन a. तो देखो ये यहां भी कट कर रहा है, अगर आप इसके पैरेलल लाइन के यहां भी कट करेगा. जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का ओरिजिन से है, उतना डिस्टेंस इस पॉइंट का ओरिजिन से है, कोई फर्क नहीं है. यू कैन दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन or you can take this point from this point. It is clear now that this plane is cutting x-axis at a. Then it's also cutting y-axis, z-axis also. Z-axis यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ कट कर रहा है z-axis. तो यहाँ से यहाँ तक ले और यहाँ से यहाँ तक हाइट बराबर है, ठीक है. ये यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है. It is very clear now कि इस पॉइंट की हाइट ओरिजिन से या इस पॉइंट की हाइट यहाँ से वो बराबर है. तो this plane is cutting x-axis at 1a, z axis at 1c. ये पूरा यहां से लेके यहां तक c. But this plane is not cutting y axis. You can see clearly. ये y axis तो कट क्यों नहीं कर रहा? इसके जो अपने दो एज है ना, ये एज और ये एज, ये y के पैरेलल है. अगर किसी प्लेन के दो एज जो हैं वो कि एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो उस एक्सिस को कट नहीं कर सकता. इट इज वेरी क्लियर नाउ कि ये इसके जो दो एज हैं, ये पैरेलल है y एक्सिस के, ये y एक्सिस ऐसे है और ये दोनों एजेस के पैरेलल हैं. तो दिस प्लेन कैन नेवर कट y एक्सिस. दैट्स व्हाई वी राइट कि अगर कोई प्लेन किसी एक्सिस को कट नहीं करता, तो हम कहते हैं वो प्लेन कट करता है एक्सिस को एट इन्फिनिटी. इसलिए लिखा है द प्लेन कट्स x एक्सिस एट 1a. y एक्सिस को कट नहीं करता, इसलिए हम लिखते हैं इट इज कटिंग y एक्सिस एट इन्फिनिटी एंड z एक्सिस एट 1c. दैट इज इन्फिनिटी का मतलब यह है कि प्लेन इज पैरेलल टू y एक्सिस. टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ क्वेश्चन क्या बनेंगे इनके ABC के 1 इन्फिनिटी 1. तो इनके रेसिप्रोकल जो करेंगे हम 1 इन्फिनिटी, बिकॉज़ 1 इन्फिनिटी एंड 1 दे आर कॉल्ड एज बाइसेंटेसिस. रेसिप्रोकल 1 का 1 रहेगा, इन्फिनिटी का 0. तो दिस इज कॉल्ड एज, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज 101 प्लेन. दिस इज कॉल्ड एज 101 प्लेन. एंड 101 अगर इसको ऑलरेडी लेवल किया हो कि ये 101 प्लेन है, उसका मीनिंग क्या है? 101 प्लेन का मतलब होता है कि दिस प्लेन इज कटिंग x एक्सिस एट इसका रेसिप्रोकल h का, तो 1 का रेस्पॉन्ड रहेगा. y एक्सिस एट ये इंडिसेस हो गई h, इट इज k, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0, इट इज इन्फिनिटी. इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. एंड थर्ड आएगा L1, रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा नेचुरली. It is very clear now. This plane is labeled as 101 plane. So अगर हमें ये गिवन दिया हो प्लेन कहाँ कट कर रहा है, तो हम उसको मिलर इंडिसेस असाइन कर सकते हैं. अगर मिलर इंडिसेस असाइन की हो, ऑलरेडी दिया हो कि इसकी मिलर इंडिसेस 101 है, तो हम बता सकते हैं कि ये प्लेन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, y कहाँ कट कर रहा है, z कहाँ कट कर रहा है. If a plane cuts negative side of origin, ये तो क्लियर है कि इट इज कटिंग पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस. इफ ए प्लेन कट्स नेगेटिव साइड ऑफ ओरिजिन, देन इंडेक्स पर जो इंडिसेस हम यूज करते हैं, रिटन विद ए बार ऑन द टॉप.
जैसे यहां हमारा है 1, तो ये 1 है, इट इज कटिंग एक्स एक्सिस एट +1। बट अगर ये प्लेन करता -1 पर, तो हम ऊपर लिखते 1 बार। I mean to say that if a plane cuts negative side of origin, then index is written with the bar on the top of index. And one thing more also, it is important to note that ये symbol जो है curly brackets is used to indicate sets of planes that are equivalent in cubic crystals. अगर किसी क्यूबिक क्रिस्टल में कोई 2 या 3 टाइप के प्लेन इक्विवेलेंट सिमिलर प्लेन हो, तो वहां पर हम इंडिसेस को नॉर्मल ब्रैकेट में नहीं लिखते, उसको लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। वी सी नेक्स्ट टाइम एग्जांपल आल्सो, आगे एग्जांपल लेंगे उसकी कि कौन कौन से ऐसे प्लेन्स होते हैं जो क्यूबिक क्रिस्टल में इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर कोई सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्लेन बनता है तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अनदर प्लेन इज शोन हियर, this plane you can see इसको शेड किया है, this is a plane. So this plane is cutting, you can see clearly it is cutting x axis at, यहां से यहां तक cutting x axis at a 1a, x axis at 1a। तो इधर you can take distance, इस पॉइंट का यहां से लें, इस पॉइंट का यहां से लें, वो a ही रहेगा नेचुरली। तो this plane which is shown in the picture, that plane cuts x axis at 1a and it is wrongly pasted here. It is cutting x-axis at 1a, y-axis at infinity b, and z-axis at 1c. It is infinity c. So that's why it is slightly, there is a correction here. यहाँ पर लिखा हुआ है it is 1a infinity b and infinity c. That is plane is parallel to z-axis, y and z. So why this plane is not cutting y and z axis? Because देखो इसकी ये जो दो साइड्स हैं, ये और ये, इस प्लेन की ये पैरेलल टू y एक्सिस है, और ये जो दो साइड्स हैं पैरेलल टू z एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेन नीदर कट करेगा y एक्सिस को ना z को, इट इज ओनली कटिंग x एक्सिस एट 1a एंड कटिंग y एक्सिस एट इंफिनिटी b, z एक्सिस एट इंफिनिटी c। तो y सिंथेसिस क्या बनेंगे इसके? 1 इंफिनिटी इंफिनिटी, एंड रेसिप्रोकल क्या बनेंगे? 1 0 0। तो अल्टीमेटली दिस प्लेन इज लेवल्ड एज 100 प्लेन। 100 प्लेन का मतलब होता है, अगर ये लिखा हुआ है कि ये 100 प्लेन है, इसका मतलब ये हुआ इट इज कटिंग x एक्सिस at reciprocal of 1, that is 1. It is cutting y axis at reciprocal of 0, that is infinity. It is cutting z axis at reciprocal of again 0, that is again parallel to zx. And this plane is ultimately categorized as 100 plane. Then you see, we have shown this plane now. अगर आप इसको ड्रा करते हैं, जैसे मैंने पीछे अभी बताया, दिस प्लेन इज 100 प्लेन, और ये प्लेन कौन सा होगा? इफ दिस इज 100, दिस प्लेन इज लेवल्ड एज 0 1। दिस प्लेन इज लेवल्ड एज, दिस प्लेन इज 100, दिस प्लेन इज लेवल्ड एज 0 1 1। इट इज अगेन 100, बिकॉज किसी भी स्ट्रक्चर मैंने पीछे बताया था, एक ऐसे जैसे एक प्लेन ये है, ये प्लेन सेकंड है, अगर ये प्लेन 100 है, इसके जो प्लेन पैरेलल होगा 10, सारे प्लेन 100 रहेंगे नेचुरली। ऑल द प्लेन व्हिच आर पैरेलल टू इट रिगार्ड एज 10। दिस इज 100 प्लेन, दिस इज 10 प्लेन। बट क्वेश्चन ये, इसका ओरिजिन कहां होगा? आपने क्या करना है, इस क्यूब के लेफ्ट में एक और क्यूब ड्रा करना है, तो इसका ओरिजिन होगा ये। बट अगर आप इसके लेफ्ट में एक और क्यूब ड्रा करेंगे, तो इस प्लेन, ये जो प्लेन ड्रा किया है, इसका ओरिजिन होगा लेफ्ट वाला क्यूब, उसका ओरिजिन होगा। अल्टीमेटली ये 100 अगर आप एक और ड्रा करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज 100 एंड सो ऑन। तो दे प्लेन है, एक प्लेन को आपने कैटेगराइज कर लिया लेवल 100, ऑल द प्लेन व्हिच आर पैरेलल टू इट आल्सो रिगार्डेड एज 100 प्लेन। नाउ यू कैन सी कि
अगर मैं सपोज करता हूं कि ये 2 यूनिट सेल्स हैं, एक यूनिट सेल ये है पहले वाला, पहला बॉक्स, और सेकंड बॉक्स, ये क्या है, ये 2 यूनिट सेल्स हैं अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है, राइट। तो ये प्लेन कौन सा होगा, 1 0 0, इसका ओरिजिन ये है। ये प्लेन कौन सा होगा, अगेन 1 0 0, इसका ओरिजिन ये है। यू फॉलो दिस पॉइंट? Yes, sir. इसका पैरेलल प्लेन्स है ना, 1 2 3 सो ऑन, राइट। तो अगर तो ये यूनिट सेल है, 1 है 2 है, अलग अलग यूनिट सेल्स हैं, 1 0 0 1 0 0 1 0 0। बट सपोज पहले हमने कहा था यहां से यहां तक आपका ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे था। ऐसे यहां से यहां तक ए है, ये बी है, ये सी है। हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये 2 यूनिट सेल अलग अलग है, तो यहां से यहां तक होगा ए, यहां से यहां बी, यहां से यहां सी। ये यूनिट सेल लेंगे, ये ओरिजिन होगा, ये ए, ये बी, ये सी। तो ये 1 0 0 विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ये 1 0 0 विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ये 1 0 0 विद रिस्पेक्ट टू अनदर ओरिजिन। इसे लेफ्ट में अगर एक और क्यूब ड्रा करेंगे। बट अगर मैं ये सपोज करता हूं कि ये 2 यूनिट सेल नहीं, एक यूनिट सेल है ये पूरा, और इसका ए है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इसका ए है, तो दिस यूनिट सेल जो है इज कटिंग एक्स एक्सिस एट by 2. 2 0 1 0 by 2. A by 2. A by 2 A by 2. इट इज कटिंग ए बाय 2, वाई एक्सिस के पैरेलल है, जेड के पैरेलल है, नॉट कटिंग। इट मीन दिस प्लेन इज अल्टीमेटली कॉल्ड एज 2 0 0 प्लेन। यू फॉलो दिस पॉइंट? Yes, बाय sir. एज्यूमिंग, अगर आप ये एज्यूम करते हैं कि ये यूनिट सेल, इसका जो यूनिट इंटरसेप्ट है वो यहां से लेके यहां तक है ए, तो दिस प्लेन इज कटिंग एक्स एक्सिस एट a by 2 or 1 by 2, y axis at infinity, z at infinity. Therefore this plane is labeled as 2 0 0 planes. बट अगर आप ये सपोज करते हैं a यहां से लेके यहां तक नहीं है, a यहां से लेके यहां तक ही है, फिर ये 1 0 0 प्लेन है। It depends upon length of unit cell also. You follow this point? Yes, sir. Sir. Now you see, ये हमने शो किया है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वो होता है जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पर हो एंड एट द बॉडी सेंटर आल्सो। ये मैंने यूनिट सेल 2 यूनिट सेल शो किए हैं, एंड फर्स्ट यूनिट सेल इट कंटेन 1 particle at each corner and 1 at the body center. This is called as second unit cell. Adjacent to it, it contains 1 particle at each corner, 1 at the body center. And firstly, you can see clearly this plane is regarded as, this plane is regarded as 1 0 1 plane. It is cutting x-axis at 1, parallel to y-axis. देखा, इसका ये जो 2 एज है ये पैरेलल टू y-axis है, y को कट नहीं करेगा, और z-axis को कट कर रहा है यहां पर कह सकते हैं, यहां पर कर रहे हैं। हाइट जितनी यहां से यहां तक है उतनी यहां से यहां तक है, कोई फर्क नहीं। इसका डिस्टेंस ले यहां से, इसका डिस्टेंस ले यहां से, बराबर है। a, this is a, this is c, this is c. It is clear now this plane is cutting x-axis at 1 parallel to y-axis and cutting z-axis also at 1, right? Reciprocals of x-axis at 1, y-axis at infinity, z-axis at 1. तो ये होंगे y indices. And what are Miller indices now? Reciprocal. 1 का 1 रहेगा, infinity का 0 होगा, and 1 का 1. Therefore this plane is recognized as 1 0 1 plane. तो ये मैंने एक यूनिट सेल शो किया है, सेम प्लेन एडजेसेंट यूनिट सेल में है, यू कैन सी क्लियरली। ये अनदर यूनिट सेल है एडजेसेंट टू इट, अगेन ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, प्लेन इज शोन हियर। दिस प्लेन इज अल्टीमेटली आल्सो रिगार्डेड एज 1 0 1 प्लेन। तो ये अल्टीमेटली हो गए सेट ऑफ 2 पैरेलल प्लेन्स। इट इज सेट ऑफ 2 पैरेलल प्लेन्स। ये कौन से प्लेन है? तो अगर क्वेश्चन होता है ड्रॉ a set of 2 1 0 1 planes, तो आपने यूनिट सेल एक ड्रा करना है, तो इसका आ गया, ये आ गया 1 0 1 प्लेन। बट क्वेश्चन है ड्रॉ अ सेट ऑफ 2 पैरेलल प्लेन्स, 1 0 1 प्लेन।
एक ड्रा किया, एक यूनिट सेल और ड्रा करेंगे तो ये इसके सेट आएगा। अगर ये क्वेश्चन हो ड्रा ए सेट ऑफ 3 पैरेलल 101 प्लेन, तो यू ड्रा वन मोर यूनिट सेल और उसमें एक और ऐसा प्लेन ड्रा करेंगे, तो अल्टीमेटली दैट इज कॉल्ड एज अ सेट ऑफ 3 पैरेलल 3 101 प्लेन्स। बट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो मैंने ऊपर यूनिट सेल बताए थे आपके, कोई मैंने पार्टिकल शो नहीं किया हुआ है, राइट। ये यूनिट सेल आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड है, ये यूनिट सेल फेस सेंटर्ड है, साइड सेंटर्ड है, नॉट शो, पार्टिकल शो ही नहीं किए। बट यहां मैंने पार्टिकल शो किए हैं कि हमने एक प्लेन ड्रॉ किया है इन ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो 101 प्लेन जो है ये ड्रॉ किए हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो अगर ये क्वेश्चन हो कि ड्रॉ ए प्लेन इन ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो आपने ऐसा प्लेन ड्रॉ करना है जिस पर पार्टिकल कॉर्नर के भी आए और बॉडी सेंटर के भी आए। And you can see clearly this is a plane which is having 4 particles of corners and 1 of body center. This is same plane. It contains 4 particles of corner and 1 of body center. These are called as planes present in BCC. आप ये प्लेन नहीं ले सकते, ये वाला। अगर आप ये प्लेन लेंगे तो इस प्लेन में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर के आएंगे, बॉडी सेंटर का नहीं आएगा। क्वेश्चन है ड्रॉ प्लेन्स इन ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो वो ये प्लेन आएगा 101 प्लेन एंड 101 प्लेन। This plane is shown here. This is called as face-centered cubic unit cell. And what is face-centered cubic unit cell? Is one which contain one particle at each corner and one at the center of each face. You can see clearly. इसके 8 कॉर्नर हैं. One particle is placed at the each corner and ये top face है. इसके सेंटर पर पार्टिकल है. ये बॉटम फेस है, इसके सेंटर में पार्टिकल है। लेफ्ट फेस के सेंटर में पार्टिकल है, राइट फेस के सेंटर में पार्टिकल है, और ये फ्रंट फेस है, यहाँ सेंटर में पार्टिकल है, और ये बैक फेस है, इसके सेंटर में पार्टिकल है। अल्टीमेटली दिस इज अल्टीमेटली बॉडी सेंटर, इट इज कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड cubic unit cell which contain one particle at each corner and one at the center of each face, and plane is shown. Again you can see this is 101 plane cutting x-axis at 1 parallel to y-axis, cutting z-axis also at 1. This is recognized as 101 plane. But this is 101 plane in FCC. Why I am calling it as 101 plane in FCC? Because plane shown in FCC का मतलब होता है you draw a plane which contains some particles of corners and some particles of face centers also. Like this is a plane 101. It contains particles of 4 particles of corner and 2 particles of face center. ये कौन सा particle है? ये this is a particle present at a center of front face. Yes. And this is the particle present at center of back face. So this is ultimately 101 plane is shown in FCC. We can show another plane in FCC, like this is a plane, ये plane, ये भी FCC में होगा. It contains particles of corners also and center of this face also. And like it is shown in another figure, you can see clearly. This is 100 plane. This plane is cutting x-axis at 1, parallel to y-axis, parallel to z-axis. एक neither cut कर रहा है y-axis को, nor cut कर रहा है z-axis. It is ultimately cutting x-axis at 1, y-axis at infinity, z at infinity. Reciprocal क्या बनाएंगे? 100. This plane is recognized as 100 plane. So this is a plane present in FCC. It contains particles, 4 particles of corner and 1 particle of face center. This is another plane shown here. This plane you can see clearly. It is shown. It is cutting x-axis at 1, y-axis at 1, z at 1. So reciprocal 1, 1, 1 के 1, 1, 1 होंगे. So this plane is recognized as 111 plane. And you can see this is also called as a plane present in FCC because it contains 3 particles of corners, 1, 2 and 3. And it contains 3 particles of face centers. ये है, this is the face center of left face. This is the face center of bottom face. This is the face center of back face. So although this unit cell contains 6 particles at face centers, but this plane only contains 3 particles of face center.
one particle of left face, one particle of bottom face, and one particle of back face, and 3 particles of corner. So I mean to say, if a question is draw planes in FCC, you can draw 111 plane like this, you can show 100 plane like this, you can show 101 plane. So 101 plane, 100 plane, and 111 plane are present in face-centered cubic unit cell. And when you talk of body-centered contain plane only 101 planes, which contain particle at corners also, as well as at the body center also. So we have ultimately some examples of planes which are cutting negative axis. Because I have not taken some figures, I will show some figures next time where a plane is cutting x-axis on negative side or y-axis on negative side or z-axis on negative side. So अगर कोई plane कट करता है एक्सिस को नेगेटिव साइड में, तो इंडिसेस के ऊपर बार शो करते हैं, बार. So that is all about, you see that how planes are shown. I have left one example only, 1 or 2 examples of planes which are cutting negative axis, either x or y or z, but we take those examples next time. I don't have figures. Next topic is crystals and diffraction of X-rays. Crystalline solids consists of a regular array of atoms, ions or molecules, with interatomic spacing of the order of 1 angstrom. मीन जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनमें दे कंटेन, अभी पीछे बताया था मैंने, दे कंटेन अरे ऑफ एटम्स और अरे ऑफ आयंस और अरे ऑफ मॉलिक्यूल्स. और वो जो स्पेसिंग होती है एटम के बीच में या आयंस के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम. फॉर डिफ्रैक्शन टू टेक्स प्लेस, मीन क्रिस्टल्स ने अगर एक्सरे को डिफ्रैक्ट करना है, फॉर डिफ्रैक्शन टू टेक्स प्लेस, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट हैज टू बी ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज स्पेसिंग इन सॉलिड्स. आई मीन टू से इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि फॉर द डिफ्रैक्शन टू टेक्स प्लेस, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट हैज टू बी ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज द स्पेसिंग इन सॉलिड्स. स्पेसिंग कितनी होती है सॉलिड्स में? 1 एंगस्ट्रॉम. स्पेसिंग इन सॉलिड्स का मतलब होता है जो सॉलिड्स में एटम प्रेजेंट हैं उनमें स्पेसिंग कितनी है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम. तो क्रिस्टल, बिकॉज क्रिस्टल में जो एटम्स हैं उनमें स्पेसिंग 1 एंगस्ट्रॉम. तो क्रिस्टल ने अगर किसी रे को डिफ्रैक्ट करना है तो वेवलेंथ ऑफ दैट रे शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम आल्सो. इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल्स जो होते हैं या सॉलिड्स जो होते हैं, ये किन रेस को डिफ्रैक्ट कर सकते हैं? जिन रेस की वेवलेंथ जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम के ऑलमोस्ट बराबर है. बिकॉज कंडीशन इज दैट वेवलेंथ ऑफ फॉलिंग लाइट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू interatomic spacing in solids. If the incident light has wavelength different from 1 angstrom or different from interatomic spacing in solids, no diffraction can happen. 3 types of radiations are used for crystal diffraction studies: X-rays, electrons and neutrons. Because इनकी जो wavelength है, that is approximately equal to interatomic spacing in crystals. That's why solids can diffract X-rays, solids can diffract beam of electrons, solids can diffract beam of neutrons also. Because condition is same. Because all these 3 rays, जो wavelength है, that is approximately equal to interatomic spacing in crystals. But out of the 3 rays, X-rays are by far most useful. X-rays wavelength commonly used in is
के अल्फा रेडिएशन। मैंने पीछे आपको बताया था एक्सरेज में कि जनरली एक्सरेज जो एक्सरेज वेवलेंथ यूज करते हैं वो यूज के अल्फा रेडिएशन, एंड वेवलेंथ होती है 1.5418 एंगस्ट्रॉम, एमिटेड बाय कॉपर। पीछे मैंने बताया था एमिटेड बाय कॉपर इज कॉल्ड एज टारगेट मेटल। तो व्हेन क्रिस्टल डिफ्रैक्ट एक्सरेज, atoms or ions act as secondary point sources and scatter X-rays. Bragg's approach to diffraction is जो Bragg's की approach to diffraction की, that is to regard crystals as built up in layers or planes. तो Bragg ने कहा था कि जो crystals हैं या solids हैं, they are built up of layers of atoms or planes of atoms. इससे पहले ब्रैग्स ने अपनी अप्रोच दी, पहले उसने रिगार्ड किया कि क्रिस्टल्स आर रिगार्डेड एज बिल्ट अप ऑफ लेयर्स ऑफ एटम्स और प्लेन्स ऑफ एटम्स। ब्रैग नोटेड दैट ओनली एट स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस ऑफ क्रिस्टल विद रिस्पेक्ट टू सोर्स एंड डिटेक्टर आर एक्सरे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन। उसने ये भी कहा कि जब एक्सरे फॉल करते हैं क्रिस्टल के ऊपर, तो ये नहीं होता कि क्रिस्टल किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट होगा एक्सरे डिफ्रेक्ट हो जाएंगे। उसने कहा कि क्रिस्टल एक्सरेज को तभी डिफेक्ट करेगा इफ एक्सरेज एंड क्रिस्टल ओरिएंटेशन आर प्रेजेंट एट पर्टिकुलर एंगल। उस एंगल को उसने कहा था ब्रैग्स एंगल। आई मीन टू से कि क्रिस्टल कैन डिफ्रैक्ट एक्सरेज ओनली इफ एक्सरेज आर ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल एट ए स्पेसिफिक एंगल थीटा। Following figure जो है that illustrate Bragg's condition for reflection of X-ray wave crystal. You can see here. This is a figure. This is मैंने पीछे बताया था. This is one plane of atoms, second plane of atom, third plane of atom, fourth plane of atoms, and ये set of parallel planes. ये है X-rays. This is A, B. It is a rays or X-rays are coming and falling on a crystal, which is made up of a set of parallel planes. You can see A जो X-ray है, it is hitting atom at B and deflected along BC. तो T X-rays थी, that is striking the atom at second plane E and goes along EH, and third X-ray striking at here somewhere here and goes like this along this way. Now you see that this is incident ray and this is the plane of crystal. This is called as angle of incidence. This is angle of reflection. They are same. And here you can draw a perpendicular here, you can draw perpendicular here on the lines. And you see, mathematically you can find out ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। अगर आप यहाँ देखें इस केस में तो this angle, whole angle is, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये एंगल 90 का है, ये यहां से लेकर यहां तक 90 है। ये आपको क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? ये एंगल 90 का है यहां से यहां तक। सो ये एंगल कितना होगा? ये वाला 90 माइनस थीटा। ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है ना ऐसे, ये परपेंडिकुलर है ऐसे, ये लाइन पैरेलल है ना आपस में, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो अगर ये एंगल 90 का है तो ये एंगल पूरा 90 का होगा, ये एंगल पूरा 90 का होगा ना ये ऐसे। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा यहां से यहां तक। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये एंगल भी पूरा 90 का है, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यू सी, मैंने दो 90 एंगल लिए हैं। एक एंगल 90 का ये लिया, ये यहां से लेके यहां तक, ये एंगल 90 का।
एक एंगल लिया है 90 का, यू कैन सी क्लियरली यहां से यहां तक, ये 90 का है। इज इट विजिबल? Yes, ये sir. थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। ये क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ये 90 माइनस थीटा होगा, राइट? ऐसे आप ये एंगल लें, ये एंगल नहीं पूरा 90 का है, ये इतना, ये एंगल 90 का है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा? थीटा। बिकॉज 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये 90 बन जाएगा ना पूरा, ये थीटा है। सेम ग्राउंड पर ये भी थीटा होगा, ये होगा कि थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। सो यहां लिखा है, यू कैन सी क्लियरली, लाइन ज्वाइनिंग द डॉट्स mark a set of parallel plane within the plane spacing DHKL. You can see that ये plane, ये सारा डिस्टेंस सेम है D, इसको लिखते हैं DHKL। HKL मैंने क्यों लिखा हुआ है? हो सकता है ये प्लेन 100 हो, या 200 हो, या 312 हो, 213 हो, तो आपने यहाँ पर सिर्फ D नहीं लिखना होगा, D और ये भी लिखना है प्लेन कौन से है, ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है। अगर ये प्लेन 100 होगा, सारे 100 होंगे, यहाँ लिखेंगे D100, ये डिस्टेंस 100 प्लेन के बीच में, तो यहां लिखना होता है D with HKL values. A parallel beam of monochromatic radiation falls ADI. It is clear. You can see there, incident on the plane angle theta. The ray is scattered by the atom at B, and ray D is scattered by the atom at F. This is important point. For reflection beams to emerge as single beam of irreversible intensity, they must reinforce or arrive in phase with each other. इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्वेश्चन इज कि ये है रिफ्लेक्टेड रेज। अब क्वेश्चन है, इन ऑर्डर दैट ऑल रिफ्लेक्टेड रेज एक फेज में हो, अगर ये सिंगल फेज में बनेंगी, देन वी गेट रिजिबल इंटेंसिटी ऑफ। So in order that these reflected beams are emerge as single beam of visible intensity, उसके लिए प्रिंसिपल है that for the constructive interference to take place, path difference of the interfering beams must be equal to integral multiple of wavelength. पाथ डिफरेंस की और दो बीम लेते हैं हम, एक बीम ली हमने A B C, एक ली है D maybe F and H, D F H, दो बीम्स हैं, इन्हें पाथ डिफरेंस कितना है? देखो यहां से लेके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। इसी पाथ डिफरेंस कितना है? यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक बीम बराबर है, तो इतना पाथ बीम ने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है यहां से यहां। सिमिलरली ये बीम BC और GH ये बराबर है, और डिफरेंस यहां से यहां तक FG एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है। तो दोनों बीम में पाथ डिफरेंस कितना है? D. EF plus FG. This is the path difference between the two. And path difference होगा EF plus FG. And then EF is equal to FG. ये दोनों बराबर है, EF और FG बराबर है। और इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है? You can see कि you take right angle triangle BEF, right angle here. तो थीटा के सामने की साइड होती है, this is called as FE, this is perpendicular, और ये hypotenuse है। तो ये होगा EF by BF is equal to sin theta. EF by BF is equal to sin theta, or EF is equal to BF sin theta, and BF is equal to D. So it is written here EF is equal to D sin theta. ऐसे FG निकालेंगे अगर, तो FG अगर होगा, this is F, this is G. A right angle triangle, F right angle at here at G, तो इसका भी हाइपोटेन्यूज ये होगा,
और परपेंडिकुलर ये होगा, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये होगा एफ जी बाई एफ बी इक्वल टू अगेन साइन थीटा, एंड एफ जी इज इक्वल टू एफ बी हो गया डी is equal to sin theta and fg is equal to d sin theta. Both are equal. fg is equal to ef is equal to fg is equal to d sin theta. And देखो पास डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसकी दोनों की वैल्यू सेम है 2d sin theta. And this path difference must be equal to integral multiple of wavelength of X-rays. That is, this is called as path difference and n is integer. This is wavelength. ये हो गया integral multiple of wavelength. These two must be same. ये कंडीशन किसके लिए है? कंडीशन इज इन ऑर्डर दैट ऑल डिफ्रैक्टेड बीम जो है दे एमर्ज एज सिंगल बीम ऑफ रिजिबल इंटेंसिटी, देन पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज. 2d sin theta must be equal to n lambda. This equation is called as Bragg's equation or Bragg's law or Bragg's condition. It relate करती है spacing between the planes, that is d, and Bragg's angle theta at which reflection from these planes are observed. When n is equal to 1, अगर n 1 करेंगे तो reflections are called as first order. When n is equal to 2, reflections are called as second order, and so on. However, the Bragg equation for second order reflection from a set of plane HKL is, you see, ये इक्वेशन थी 2d sin theta n lambda. n 1 करेंगे तो होगी फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, n 2 करेंगे होगी सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन. तो वी हैव रिटन Bragg's इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन. n 2 पुट कर देंगे, ये पुट किया है, n 2 किया, 2 lambda is 2d sin theta और lambda is equal to 2 और ये 2 इधर ले गए, d HKL by 2 into sin theta, कोई डिफरेंस नहीं. इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स, अब इक्वेशन 1 जो है ये फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है. यू सी इक्वेशन दिस एंड दिस वन, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन फॉर second order and this is equation for first order. बिकॉज़ मैं 2 उठा के इधर ले लिया, 2 उठा के इधर ले गए, ये इक्वेशन बिकॉज़ n is 1 हो गया यहां पर, तो ये रिफ्लेक्शन, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर की. अब डिफरेंस देखो, ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है. अब यहां अगर आप देखें तो दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन. किन प्लेन के लिए? उन प्लेन में जिनमें डिस्टेंस जो था वो DHKL था. अब ये इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन है. दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर. एंड ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए है किन प्लेन्स के लिए? जिनमें डिस्टेंस क्या है, DHKL/2. ये फर्क है. देखो ये सेकंड ऑर्डर की, ये फर्स्ट ऑर्डर की. अगर ये सेकंड ऑर्डर की लिखनी है, प्लेन में डिस्टेंस होगा d, पर अगर आपने इसी क्वेश्चन को फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म में लिखना होगा तो प्लेन में डिस्टेंस होगा ना d/2. ये डिफरेंस है. यू कैन सी इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए सेट ऑफ प्लेन्स विद इंटरप्लेनर स्पेसिंग d/2. द सेट ऑफ प्लेन्स विद इंटरप्लेनर स्पेसिंग d/2 हैज मिलर इंडिसेस. इसकी मिलर इंडिसेस क्या होंगी d/2 की? 2h, 2k, 2l. So the second order reflection from HKL is indistinguishable from first order reflection from 2h, 2k, 2l. You can see clearly here. This is very important point. कि set of planes with interplanar spacing d/2, इसकी मिलर इंडिसेस होगी 2h, 2k and 2l. अगर इंटरप्लेनर स्पेसिंग d है ना तो HKL बनता है, तो यहां होगी 2h, 2k, 2l. तो सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम HKL इज indistinguishable from first order reflection from 2h, 2k and 2l, and therefore Bragg equation may be written simply as lambda is equal to 2d sin theta. हम n लिखते ही नहीं यहाँ पर, बिकॉज अगर हम यहाँ n2 पुट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर है. इसी इक्वेशन को अगर हम n1 पुट करें, ये 2 इधर ले जाएं, ये फर्स्ट ऑर्डर की बन जाएगी और फर्क कोई नहीं पड़ता. ये इक्वेशन होंगे तो यहाँ पर प्लेन्स होंगे इस इक्वेशन के लिए HKL और इसके लिए प्लेन्स होंगे 2h, 2k, 2l. तो जो रिफ्लेक्शन होगी HKL से दैट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम
planes represented by 2h, 2k and 2l. That's why कि जनरल इक्वेशन हम n लैम्डा लिखते हैं ना, हम सिर्फ लिखेंगे लैम्डा इज 2d sin theta. There is no difference between first order reflection and second order reflection, because first order reflection का मतलब हुआ प्लेन HKL लिया और सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ प्लेन लिया 2h, 2k, 2l, बट दोनों रिफ्लेक्शन इंडिस्टिंग्विशेबल होंगी. तो दिस इज कॉल्ड एज, देयरफॉर ब्रैग्स इक्वेशन जो है मे बी सिंपली रिटन एज लैम्डा इज इक्वल टू 2d HKL sin theta. So this is all about your today's lecture now. So thank you students